ناظرین آداب، تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے تلنگانہ گروپ 3 کے نتائج کیے جاری۔ مردوں میں ٹاپ رینکر نے 339.24 نمبر کیا حاصل۔ جنرل رینک کی فہرست بھی کی گئی جاری۔ ضلع ورنگل میں 27 مارچ کو BRS کی سلور جوبلی تقاریب کا انعقاد۔ سابق وزراء ہریش راؤ، ارابلی دیاکر راؤ، ارکان اسمبلی اور دیگر BRS قائدین نے جلسے کی تیاریوں کا کیا معائنہ۔ کیا عوامی مسائل اسمبلی میں بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ جگدیش ریڈی کی معطلی کی شدید مذمت۔ کانگریس حکومت اور چیف منسٹر پر کے کویتا کی شدید تنقید۔ حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے پر جگدیش ریڈی کی معطلی جمہوریت کے قتل کے مترادف۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی غلط حکمرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی کا بیان۔ ہولی کے تہوار کے موقع پر ہائیڈرا کے متاثرین نے سابق وزیر ہریش راؤ کو دی دلی مبارکباد۔ ہائیڈرا کے حالیہ انہدام سے شدید پریشانی میں ہریش راؤ کی حوصلہ افزائی کی کوششوں کو کیا یاد۔ اور AC سے آ رہی تھی پر اسرار آوازیں، کور کھولا تو سانپوں کا جھنڈ نکل آیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم ضلع میں پیش آیا واقعہ۔ تلنگانہ میں درجہ حرارت میں زبردست اضافہ، ریکارڈ مزید 2 سے 3 ڈگری اضافے کا امکان۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ہیٹ ویو جیسی صورتحال ہونے محکمہ موسمیات کی پیش قیاس۔ یکم مئی تا 4 مئی ممبئی میں عالمی آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ کا انعقاد۔ ہندوستان میں عالمی برادری سے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی اپیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے جمعے کو تلنگانہ گروپ 3 کے نتائج جاری کیے ہیں اور اس موقع پر جنرل رینکنگ بھی جاری کی گئی۔ یہ نتائج جمعے کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر میں چیئرمین بی وینکٹیشم نے جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گروپ 3 میں مردوں میں ٹاپ رینکر نے 339.24 نمبر حاصل کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گروپ 3 خواتین کے لیے ٹاپ رینکرز نے 325.15 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پہلے 36 رینک میں صرف ایک ہی خاتون امیدوار تھی۔ پہلے 50 رینک میں صرف 4 خواتین امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گروپ 3 کے امیدواروں کے لاگ ان ID کے ساتھ لاگ ان کر سکتے ہیں اور OMR شیٹس کو چیک کر سکتے ہیں۔ TSPSC نے 2,49,557 امیدواروں کے جنرل رینک جاری کیے ہیں۔ واضح ہے کہ گروپ 3 کا امتحان گزشتہ سال 17 اور 18 نومبر کو منعقد کیا گیا تھا تاکہ ریاست میں کل 1,365 گروپ 3 سروس کی جائیدادوں کو بھرتی کیا جا سکے، جبکہ 5,36,400 افراد نے امتحانات کے لیے اپلائی کیا تھا اور صرف 2,69,483 یعنی 50.24% امیدوار امتحان میں شریک ہوئے، اور جبکہ تقریباً 49.76% امیدوار غیر حاضر رہے۔ BRS پارٹی کے قیام کے 25 سال مکمل ہونے پر BRS کے زیر اہتمام 27 اپریل کو ضلع ورنگل میں بڑے پیمانے پر سلور جوبلی تقاریب کا انعقاد عمل میں آیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں منعقدہ عظیم الشان جلسہ عام کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہے، جس کو BRS سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر کے خطاب کریں گے۔ چنانچہ سابق وزراء ہریش راؤ، ارابلی دیاکر راؤ، رکن اسمبلی P راجیشور ریڈی، سابق ارکان اسمبلی ایڈ نریندر پیدی سدرشن ریڈی اور دیگر قائدین آج ضلع ورنگل کا دورہ کر کے BRS کے سلور جوبلی کے سلسلے منعقدہ جلسہ عام کی تیاریوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔
बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर रुकन कानून साज काउंसिल कलवा कुंटला कविता ने साबिक कानून साज काउंसिल साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर एमएलए जगदीश रेड्डी के तेलंगाना असेंबली से मुअत्तली की शदीद मजम्मत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कविता ने कहा कि क़ुव्वत बर्दाश्त न रखने वाले कैसे तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के सीनियर एमएलए जगदीश रेड्डी के असेंबली से मुअत्तली की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करे और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करे तो क्या उसे असेंबली से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या अब अवामी मसाइल को कानून साज असेंबली में उठाने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी? उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत का यह रवैया अदम बर्दाश्त और जमहूरी अक़दार के मुग़ायर है। ऐसा लगता है कि हुकूमत असेंबली में अवामी मसाइल पर बहस से बचने और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर जगदीश रेड्डी को मुअत्तल किया है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए ताकि अवामी नुमाइंदे ऐवान में अपनी जिम्मेदारी आज़ादाना तौर पर अदा कर सकें। साबिक वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने पर साबिक वजीर जगदीश रेड्डी की मुअत्तली ज़ालिमाना इक़दाम है। उन्होंने कहा कि बजट अजलास ख़त्म होने तक जगदीश रेड्डी को असेंबली से मुअत्तल करना अच्छा अमल नहीं है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी गलत हुक्मरानी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला असेंबली में मसाइल को उठाने से बचने के लिए लिया गया है। उन्होंने जगदीश रेड्डी की मुअत्तली पर हुकूमत पर जमहूरियत के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। हैदर शाह को ड्रीम होम कॉलोनी के मकीनों ने होली के त्यौहार के मौके पर साबिक वजीर हरीश राव को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कॉलोनी के लोगों ने याद किया कि हरीश राव ने उनकी उस वक्त हौसला अफजाई की और हिमायत की थी जबकि वो हाइड्रा के हालिया इन्हिदाम से शदीद परेशान और आंसू बहा रहे थे। 5 माह कबल हाइड्रा के ज़रिए उनके मकानात को मिसमार करने से वो सख्त गमज़दा थे और अपनी दीवार को गिराने के लिए हरीश राव ने उनकी परेशानी को समझा और हाइड्रा की कार्रवाइयों को रोकने के लिए ज़ाती तौर पर कॉलोनी पहुँचे। मुतासिरीन की जानिब से कांग्रेस हुकूमत के मज़ालिम की मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि जब हम परेशान थे उस वक्त हरीश राव हमारे साथ खड़े थे। कॉलोनी के मकीनों ने कहा कि वो हरीश राव की इस मदद को कभी फरामोश नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजिबा कलिमात का इजहार करने की शदीद मजम्मत करते हुए हल्का असम्बली गजवेल के बीआरएस पार्टी उमूर इंचार्ज साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने आज जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला से फौरी नाजिबा अल्फाज को वापस लेने और केसीआर और रियासत के अवाम से गैर मशरूत माज़रत खाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी सियासी बसीरत को दूर अंदेशी से महज 10 साल में रियासत को हर एतबार से सफ़े अव्वल में खड़ा करते हुए नई रियासत को सुनहरा तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बनाया था, जबकि रेवंत रेड्डी ने गुज़श्ता 15 माह से अपने नातजुर्बाकारी की बिना पर रियासत को हर एतबार से पसमानदा और कर्ज के बोझ में मकरूज कर रखा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक रेतु भरोसा और किसानों को गैर मशरूत तरीके पर जारी की जाए। फौत होने वाले किसानों को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर रेतु बीमा फराहम किया जाए। मिस्टर प्रताप रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से किए गए तबकावारी असास वाले ख़ानदानी सर्वे ला हासिल करार देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता अरकान काउंसिल एक खुल्लम खुल्ला सर्वे की मुखालिफत की है जो कि हुकूमत की नाकामी को अया करती है। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज, मीरा कृष्णा रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। సీతారాంలో ఎత్తిపోతల అదేవిధంగా భీమా నెట్టంపాడు కోయల్ సాగర్ ఇట్లా దాదాపుగా 11 ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేసి 21 పంపు స్టేషన్లు పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో 3.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అంటే అంత దిగుబడి వచ్చే విధంగా భారతదేశంలో పంజాబ్ను తలదన్న విధంగా పక్కన ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తలదన్న విధంగా భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 అంటే అంత ఈల్డింగ్ వచ్చే విధంగా అంత ప్యాడీ వచ్చే విధంగా గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు చేసింది.
మరి పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు అప్పుడు అవుతాయి. మరి గౌరవ ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేచర్ మీద ఉంది ఫైనాన్స్ పరిస్థితి అని అంటున్నాడు. మరి మీరు హామీలు ఇచ్చినప్పుడు డిసెంబర్ 9 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తాం, డిసెంబర్ 9 4,000 పెన్షన్ ఇస్తాం, డిసెంబర్ 9 హ్యాండిక్యాప్కి 6,000 పెన్షన్ ఇస్తాం, తులం బంగారం ఇస్తాం కళ్యాణ లక్ష్మికి. అట్లా హామీలు ఇచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు సోయి ఉండాలి కదా, సోయితోనే మాట్లాడాలి కదా. ఇప్పుడేమంటుండు లెంక బిందెలు లేవు ఇయ్యలేకపోతున్నా అంటుండు. అంటే లెంక బిందెలు దొరికితేనే ఇస్తావా? ఇంకో మాట అన్నాడు, నేను సీతారాంలో ఎత్తిపోతారా. याकुतपुरा में वाक़ असफ़ा डेयरी के करीब कब्रिस्तान के ट्रांसफार्मर में आतिशदगी का वाक़या पेश आया। आग लगने की खबर मिलते ही याकुतपुरा हल्के के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मौके पर पहुंचे और महकमा बिजली के अफसरान से बात की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस को अलर्ट किया और इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया। आतिशदगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मकामी अफराद ने भी आग पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। तेज़ रद्द-ए-अमल और टीम वर्क की बदौलत सूरत हाल पर जल्द काबू पा लिया गया। अभी ईदी बाज़ार अल-सफ़ा डेयरी के सामने जो अनमोल होटल के सामने रास्ता था, वहाँ पे एक कदीम ख़बरस्तान था। ख़बरस्तान में ट्रांसफार्मर को आग लगने की तरफ से पूरा बड़ा एक झाड़ था, झाड़ को आग लग गई एक आधा घंटा पहले। जैसे ही इत्तला मिली मुझे, यहाँ के मुकामी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ पर आग लग गई एमएलए साहब। फौरी इमीडिएट मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम ज़िम्मेदार के अलावा यहाँ बस्ती के पूरे लोग थे। सब कोशिश करके आग बुझाया। मैं जैसे इत्तला मिली मैंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बात करके सबसे पहले सब स्टेशन से करंट बंद करवाया। उसके बाद में आग को काबू यहाँ के बस्ती के लोग काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू में पाए थे। फायर ब्रिगेड भी आ गया, पुलिस भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अभी आग अल्हम्दुलिल्लाह बुझ गई है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी में जब कभी भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात आती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार सबसे पहले मौजूद होते हैं, जो एरिया के मुकामी सदर होते हैं, मोतमद और एक्टिव वर्कर। अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के टाइम पे ये जो आग लगी थी, एक बहुत बड़े हादसे से ये आग को जिला सिद्दीपेट में भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से आज असम्बली के जारी अजलास तक बीआरएस के रुकन असम्बली जी जगदीश रेड्डी की मुअत्तली के खिलाफ पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा पार्टी उमर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी की क़ियादत में किया गया, जिसमें साबिक सदर बल्दिया NC राजामौली गुप्ता, मोहम्मद ज़कीउद्दीन नायब सदर, मोहम्मद नवाज़ मीरा सदर टाउन कमेटी, डॉक्टर P मलेशियम ज़िला परिषद साबिका रुकन और दूसरे कायदीन एहतजाज में शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हट धर्मी का रवैया इख्तियार करते हुए पार्टी के रुकन असम्बली साबिक रियासती वज़ीर जी जगदीश रेड्डी को मुअत्तल किया, जो कि गैर जमहूरी अमर है। उन्होंने असम्बली इजलास में गवर्नर के खुतबे पर कलिमात तशक्कुर के दौरान खिताब करते हुए हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया था। इससे बुखलाकर हुकूमत ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। पार्टी और अवाम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया और कहा कि रियासती हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने अपोजिशन अरकान को निशाना बना रही है। పూర్తి అయ్యే వరకు సస్పెండ్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలను అసెంబ్లీలో నిలబెట్టి కడిగి వేస్తే దాన్ని భరించలేనటువంటి ప్రభుత్వం ఆయనను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇలా రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోగా ఇచ్చిన హామీలు ఎక్కడ కూడా అమలు కావట్లేదు. అదే కాకుండా రాష్ట్రంలో రైతాంగానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి రైతు భరోసా ఎక్కడ రావట్లేదు.
అదేవిధంగా ఎక్కడ చూసినా పొలాలు ఎండిపోయి కరెంటు రాక నీళ్లు లేక రైతులు ఇవాళ బోర్ల వెంట బండ్ల వెంట పడిండ్రు. గతంలో కేసీఆర్ గారు हैदराबाद शहर में रंगों का त्यौहार होली की तकरीबात रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई। होली के मौके पर मर्दों की बड़ी तादाद को एक दूसरे पर रंगो गुलाल फेंक कर खुशी और मुसर्रत में झूमते हुए नाच गाने में मसरूफ़ देखा गया। शहर के तमाम गली कूचों में कई नौजवान, बूढ़े और बच्चों की बड़ी तादाद को एक दूसरे के चेहरों पर रंग लगाने में मसरूफ़ देखा गया। इस मौके पर कई मकामात पर होली की तकरीबात का एहतमाम किया गया। लड़के डीजे गानों पर डांस करते देखे गए। इस मरतबा होली के मौके पर नौजवानों को नए अंदाज में होली से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देखा गया। ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन और हलके के तमाम मौज़ात में मकामी अवाम की जानिब से रंगों का त्यौहार होली जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें अवाम ने उम्र का लिहाज के बगैर एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया। भारत राष्ट्र समिति के पार्टी उमर इंचार्ज बड़ा गजवेल हल्कावी प्रताप रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा मकामी अवाम को होली की मुबारकबाद पेश करते हुए रंग लगाया और जश्न में शिरकत की। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में रंगों का त्यौहार होली रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। चुनांचे इस मौके पर सिकंदराबाद के कंटोनमेंट में होली की तकरीबात मुनक़िद की गई। इस दौरान साबिक वज़ीर सी मल्ला रेड्डी और मलकाजगिरी के रुकन असम्बली राजशेखर रेड्डी ने बोइनपल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर होली मनाई। साबिक वज़ीर सी मल्ला रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा होली तकरीबात में हिस्सा लिया और गुलाल फेंकते हुए रक़्स भी किया। कुरान मजीद इल्म व इबादत का मजमुआ है। कुरान मजीद ज़िक्र भी है और फ़िक्र भी। मुसलमानों का ईमान है, क़यामत तक कोई आयत, कोई हरूफ और कोई हरकत तब्दील नहीं हो सकती। ये कुरान मजीद का एजाज़ है। कुरान मजीद बरक़ात, हसनात और फैज़ान इलाही का एक लामुतनाही सरचश्मा है। कुरान मजीद शिफा है और हिकमत व मौज़ियत का बेहतरीन सरमाया है। इसका पढ़ना, देखना, सुनना सब इबादत है। कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड का 24वां सालाना मरकज़ी जलसा यौमुल कुरान तारीख़ी मक्का मस्जिद हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमाए किराम इज़हार ख़याल की, जिसमें काबिल ज़िक्र हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह नजमुद्दीन क़ादरी अल जिलानी, साक़िब पाशा अमेरिका, अमीर कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासी अहमद सूफ़ी, मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शत्तारी, मौलाना अहमद नक्शबंदी जुनैदी, मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी, मौलाना मोहम्मद सलाहुद्दीन क़ादरी, सैयद शाह नूरुल हक़ क़ादरी, मौलाना मकबूल क़ादरी कर्नाटक, हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम ने मुखातब किया। जलसे का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी शेख जाफ़र की क़िरात हाफिज़ मोहम्मद मुसअब की पाशा दानिश की नात शरीफ से हुआ। निज़ामाबाद ज़िले में पुलिस तहवील में एक रिमांड कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक़ पेदापल्ली ज़िले से और उसकी मौत पर उसके घर वालों ने शदीद एहतजाज किया। मकतूल का नाम संपत था, जो कि जगतियाल में खलीजी ममालिक रवाना करने के लिए कंसल्टेंसी चलाता था। इत्तलात के मुताबिक संपत ने रोज़गार के लिए कुछ अफराद को गल्फ़ ममालिक रवाना किया था, ताहम दुबई जाने वाले उनमें से कुछ अफराद को वहाँ रोज़गार न मिला और वो मुश्किलात में मुब्तला हो गए और वापस आ गए। मुतासिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि संपत ने उन्हें जानबूझकर नकली वीज़ा के ज़रिए धोखा दिया था, जिस पर उन्होंने हाल ही में निज़ामाबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संपत को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। बाद अज़ा 2 दिनों की पूछगछ के लिए उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया। उसी दौरान आज सुबह संपत की कस्टडी में मौत हो गई, जिसने मामले को मज़ीद संगीन बना दिया। मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन और रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने तशद्दुद के ज़रिए संपत को हलाक किया है और वो इंसाफ का मुतालबा करते हुए सरकारी अस्पताल के बाहर एहतजाज पर बैठ गए। निज़ामाबाद ACP राजा वेंकटा रेड्डी ने मौके पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि संपत की मौत अस्पताल में ही वाक़ई हुई है और डॉक्टरों ने भी इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने मज़ीद बताया कि संपत की मौत के सिलसिले में 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। इस दौरान पुलिस ने संपत की मुश्तबे मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की तहक़ीक़ात जारी है।
आंध्र प्रदेश में एक शख्स उस वक्त शदीद खौफजदा हो गया जब उसने अपने एयर कंडीशनर के अंदर गैर मामूली हलचल महसूस की। उसे लगा कि शायद एसी में कोई तकनीकी खराबी, लेकिन जब उसने कवर हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। एसी के अंदर छोटे छोटे कई सांप रेंग रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग उस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सांप आमतौर पर गर्म और महफूज जगहों की तलाश में रहते हैं, खासतौर पर अंडे देने के दौरान कम इस्तेमाल होने वाले या पुराने एयर कंडीशनर्स के लिए एक महफूज पनाहगाह बन सकते हैं। सांप वेंट या छोटे सुराखों के जरिए उन मशीनों में दाखिल हो सकते हैं और अंदर अंडे दे सकते हैं। यह अजीबोगरीब वाक़या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पंदुर्ती इलाके में पेश आया, जहां एक शख्स सत्यनारायण को अपने एसी में सांपों का झुंड मिला। तेलंगाना में दर्जा हरारत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खासतौर पर शिमाली तेलंगाना के अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। तेलंगाना के आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल अजला में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मकामात पर हीट वेव के हालात पैदा होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमे के रोज़ ये इत्तला दी है। यौमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्ते के रोज़ रियासत के आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, पेद्दापल्ली अजला में भी गर्मी की लहर चलने की तवक्को है। अगले 3 दिनों के दौरान रियासत के अलग अलग मकामात पर सुबह के औकात में कोहर छाए रहने की तवक्को है। इसी मुद्दत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बतदरीज 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने का इम्कान है। कर्नाटक में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया, जहां एक शख्स ने अपने पड़ोसी पर गाड़ी चढ़ाकर कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक खातून भी हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक सतीश नामी शख्स ने अपने पड़ोसी मुली प्रसाद पर कातिलाना हमले के इरादे करने से तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। मुली प्रसाद इसी वक्त अपने बाइक पर जा रहा था कि अचानक सतीश ने अपनी कार उस पर चढ़ा दी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.